اور اب آج کے اس پروگرام کی میزبان تشریف لاتی ہیں غزالہ قریشی۔ تھوڑی سی تالیاں بجا کر رکھیے کیونکہ ایک انٹری ابھی باقی ہے۔ جو صاحب اب یہاں تشریف لا رہے ہیں انہیں ہر فن مولا بننے کا بہت شوق ہے، ایکٹنگ کی بھی کوشش کر چکے ہیں، کامیڈی میں بھی ہاتھ پاؤں چلاتے رہتے ہیں، اور گلوکاری کا تو بے تحاشا شوق ہے۔ ویسے آواز اچھی پائی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ ان کا گانا سننے کے بعد کہتے ہیں کہ کاش یہ خاموش فلموں کے زمانے میں گایا کرتے۔ لوگوں کے گلے میں درد ہوتا ہے، ان کے گلے میں تکلیف ہے۔ برصغیر کی ایک عظیم گلوکارہ کا کہنا ہے کہ ان کے گلے میں شیطان بولتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں آج کے شیطان، معاف کیجیے گا، آج کے میزبان معین اختر۔ راولپنڈی اسلام آباد میں سرکاری ہاتھوں نے آج پہلی دفعہ اتنی غیر سرکاری تالیاں بجائی ہیں۔ اس سے کم از کم یہ تو اندازہ ہو گیا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ بھی مذاق سمجھتے ہیں۔ معین، آپ کو آج یہاں کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا؟ سوائے آپ کے سب ٹھیک ہے۔ بس یعنی بدلہ فوراً لے لیا آپ نے، ہیں؟ نہیں، میرا مطلب تھا اتنی بڑی جگہ ہے، لوگوں سے ہمارا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ہم تو انہیں صاف دکھائی بھی نہیں دے رہے ہوں، اور اگر اس وقت آپ کی بجائے ہینگر پر ایک کالا سوٹ ٹانگ دیا جاتا تب بھی لوگ یہی کہتے کہ وہ معین اختر کھڑے ہیں۔ خدا کا شکر بھیجیے کہ آپ کی آواز لڑکیوں والی ہے۔ اگر آپ کی آواز لڑکیوں والی نہیں ہوتی تو پیچھے بیٹھنے والوں کو کیا پتہ چلتا کہ معین اختر کے ساتھ غزالہ قریشی کھڑی ہیں یا مصطفیٰ قریشی۔ ویسے میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا غزالہ، کیونکہ میں تمام لوگوں کو بہت صاف اور واضح طور پر دیکھ رہا ہوں، بلکہ بہت سے لوگوں کو تو پہچان بھی رہا ہوں۔ مطلب یہاں سے آپ اتنے سارے لوگوں کو پہچان رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، تو یہ بتائیے وہ جو اوپر والی لائن ہے نا، اس میں وہ آخری 2 سیٹوں پہ کون بیٹھے ہیں؟ وہ جو نتھیا گلی سے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں وہی۔ کیا دوربینیں لگائی ہیں انہوں نے، دیکھیے ذرا۔ اچھا، ویسے ان کو پہچاننا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں، وہ تو وہ ہیں، اچھا، اور ان کے برابر میں جو ہے وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ واہ۔ کیسا؟ اچھا، مذاق بہت ہو گیا، اب میرا خیال کوئی سیریس بات کریں۔ چلیے صاحب، سیریس بات کیے لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک خوشخبری کہ کل یعنی 26 نومبر کو پاکستان ٹیلی ویژن پورے 22 سال کا ہو گیا، اور آج 23ویں سال کا پہلا دن ہے۔ معین، آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ آخر اس چھٹے پی ٹی وی ایوارڈز کی تقریب کے لیے یہ جمنیزیم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہر آنے والا اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کر سکے۔ معین، یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن کی اسکرین ایک کھیل کے میدان کی طرح ہوتی ہے جہاں سارا سال مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور پھر سال کے آخر میں کچھ فاتح کھلاڑیوں کو انعام دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ کھلاڑی جو ہار جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ بہت کھلے دل اور بہت اچھے جذبات کے ساتھ یہ سارے فیصلے تسلیم کریں۔ اچھا غزالہ، ویسے یہ تمام لوگ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹیلی ویژن ایوارڈ اس دفعہ ذرا تاخیر سے منعقد ہو رہا ہے، تو اس میں کب سے کب تک کے پروگرام شامل کیے گئے؟ ہاں معین، اس بات کی وضاحت کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ بیشتر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس پی ٹی وی ایوارڈ میں تنہائیاں، چھاؤں اور ہزاروں راستے وغیرہ شامل ہیں، لیکن ہم یہاں وضاحت کیے دیتے ہیں کہ یہ 1985 کے ایوارڈ ہیں، اور اس میں
1 जनवरी 1985 से लेकर 31 दिसंबर 1985 तक के प्रोग्रामों के दरमियान मुकाबला है। और ख़वातीन और हज़रात, हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि तकरीबन 100 के करीब नॉमिनीज़ हैं, लेकिन इनमें से चंद लोग किसी बाज़ वजूहात की वजह से तशरीफ़ नहीं लाए। हम शोबों का आगाज़ करते हैं। पहला शोबा क़िरत और नात ख़्वानी। इनके लिए मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 2 नामवर शख्सियतों को यहाँ पर ज़हमत दे रहा हूँ। टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ बहुत पुराना है और अक्सर व बेशतर टेलीविज़न से अपनी मोहब्बत का सबूत ये फ़राहम करते रहे हैं। एक टेलीविज़न के नामवर मुसन्निफ़ हैं और दूसरी टेलीविज़न की सबसे पहली अनाउंसर हैं। ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ लाते हैं अशफाक अहमद और कमल नसीर। शोभा है कारी, नामजद हुए हैं क्वेटा सेंटर से प्रोग्राम फरमान इलाही के लिए कारी शाहिद इस्लाम। रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर से प्रोग्राम बसीरत के लिए नामजद हुए हैं कारी खुशी मोहम्मद। कारी साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। तीसरी नामजदगी लाहौर सेंटर के प्रोग्राम हुस्न क़िरात के लिए है। नामजद हुए हैं कारी गुलाम रसूल। ख़वातीन हज़रात, कमल पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ में एक बड़ा ही मोतबर नाम है और जैसा कि आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाया, ये अनाउंसमेंट करने में अपना सानी नहीं रखती। लेकिन आज से चंद साल पहले अगर मैं लौट के जाऊं, जब ये 4ठी जमात में पढ़ती थी, तो उस वक़्त अपनी तारीख़ का सब ये बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े इन्हिमाक से याद किया करती थी। और ख़ास तौर पर इसका वो तारीख़ का वो हिस्सा जब ये ज़माने कदीम के बारे में अपनी मम्मी को सुना रही थी कि कदीम ज़माने के लोग पहाड़ों की गारों में, दरख्तों की खोओं में रहते थे। तो इसकी मम्मी ने पूछा कि कदीम क्या होता है? तो इसने कहा कि मम्मी, कदीम बहुत पुराना होता है, बल्कि उससे भी पुराना होता है जो मैं कह रही हूँ। तो ये आज एक मोतबर नाम जो आपके सामने है, इसने मुझे जो ये दिया है रुक्का, नहीं मैं पढ़ सकूंगा, इसमें हुस्न क़िरात के मुकाबले में जो कामयाब नाम हमारे पास इस सील बंद लिफाफे से निकला है वो है कारी खुशी मोहम्मद। मैं पहले अर्ज कर चुकी हूँ कि कारी साहब मुल्क से बाहर हैं। जब वो वापस आएंगे तो उनका इनाम उन तक पहुँचा दिया जाएगा। जी। दूसरा शोबा है नात ख़ानी। नात ख़ानी के शोबे के लिए नामजद हुए हैं लाहौर सेंटर के नात ख़ां कारी ज़ुबैद रसूल। दूसरा नाम है कराची सेंटर से मुनीबा शेख। और तीसरी नामजदगी रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर से जनाब मंजूरुल कौनैन की है नात ख़ानी के लिए। और जीतने वाला नाम है मुनीबा शेख। हमारे बचपन में हमारे गांव में, बल्कि गांव क्या, वो बहुत बड़ा कस्बा था, उसकी 18,000 की आबादी थी। वहाँ एक बाबा मौलू रहता था जो एक लंबा नीला कुर्ता पहन के सारा दिन गली बाजारों में घूमता रहता था। उसके हाथ में तेल की एक कुप्पी होती थी। जो दरवाजा हमारे गांव का या कस्बे का जो भी चीखता था या जिसके कुलाबों के ऊपर बोझ पड़ता था या जिसके कब्जे चीखते थे, वो उसको तेल की एक एक बूंद दे के चलता रहता था। उसका ख्याल था कि मेरे इस तरह तेल देने से दुनिया से रौला और शोर कम होगा, और ज्यों ज्यों शोर कम होगा महबूब का नाम ऊंचा होगा। तो खुश नसीब हैं वो नात खां जो महबूब का नाम ऊंचा करते हैं और हमारी जिंदगियों से शोर कम करते हैं। आपको बहुत
अवार्ड्स के शोबों में इस बार एक नया इजाफा किया गया है। इस साल से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों के दरमियान भी मुकाबला हुआ करेगा। इस वक्त मैं एक बात अर्ज कर दूं, ख़वातीन और हज़रात, बच्चों के शोबे में बच्चों के प्रोड्यूसर को अवार्ड देने के लिए और उनकी कैटेगरीज अनाउंस करने के लिए मैं दो ऐसी शख्सियतों को बुलवा रहा हूं जिनका नाम सुन के शायद आप उछल पड़ें, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अपने कुर्सी के हत्थों को मजबूती से थाम लें। तशरीफ ला रहे हैं अंकल सरगम और मासी मुसीबतें। हाँ मैं सरगम ओह मिस मुसीबती, क्या बात है मिस मुसीबती? ये तालियां जो बजी थी ये तुम्हारे लिए बजी थी कि मेरे लिए? तुसी दसो पला मेरा मतलब है कि मेरे लिए बजी थी मिस मुसीबती। मैं तेरे लिए? हाँ। ये क्यों, तूने कोई अवार्ड मिला तुझे? ओए अवार्ड क्या चीज है मिस मुसीबती, और मुझे इस तकरीब का पास मिला है, पास। हाँ और दूसरी बात ये है मिस मुसीबती। क्या है दूसरी क्या बात है? दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ का आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हूँ। आउटस्टैंडिंग? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ बे? आउट मैंने बाहर और स्टैंडिंग मैंने खड़ा, यानी टीवी के बाहर ही खड़ा रहता हूँ, बुक ही नहीं होता। और वैसे मिस मुसीबती, हाँ तुम्हें भी अवार्ड मिल ही जाना चाहिए। आप हाँ बे नामा नीम ना होता बे, मुझे क्यों बे? देखो ना, इस दफा टीवी ने 2 साल के बाद अवार्ड दिए हैं। अच्छा इसके बाद शायद 3 साल के बाद ये तकरीब मुनक़िद हो है? ठीक है। और तुम जैसी बुजुर्ग फनकार शायद तब तक कहीं हो चुकी हो। बे तेरा काम ना जाने बे, ये ना करे बे, ऐसी क्यों बात करते हो? अच्छा भी मिस मुसीबती, ये लो। बे क्या बे? मेरी तरफ से ये मैं तुम्हें अवार्ड देता हूँ पिंडी सेंटर से बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूस करने पर। जो नामा नीम ना होता बे, क्यों आश्चर्य करते हो बे, क्यों मजाक करते हो? ओह मिस मुसीबती, मैं ठीक कह रहा हूँ। बे पिंडी सेंटर से तो ड्रामा हुआ ही कोई नहीं। अच्छा लिफाफा भी तो देखो भी खाली है अंदरों। जो नामा नीम ना होता बे। हाँ बेटा सरगम है? हाँ मिस मुसीबती। बे ये बताओ कि मैं अपना हाथ जो है हाँ। ये तुम्हारे बाजू से उठा लूं? मिस मुसीबती रहने दो, नाजरीन को थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेने दो। नामा नीम ना होता बे, कहीं एंजॉय कराते कराते अपना बाजू सेंसर ना करवा लेना। ओह मिस मुसीबती, इसका फिक्र ना करो, इसका इंतजाम मैंने किया हुआ है। बे क्या इंतजाम किया है? बताऊं? बताओ ना। ये देखो। बे तेरा कब ना जावे बे सरगम है? बे ये क्या बे? बे नकली बाजू, बे फ्रॉड ये। मिस मुसीबती, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं नाजरीन की इंजॉयमेंट के लिए अपना असली बाजू सेंसर करवा लूं? है मिट्टी डालो, वो देखो तो सामने देखो, वो देखो कितने बड़े बड़े अफसर बैठे हैं। हाँ अफसर तो वाकई बहुत सारे बैठे हुए हैं, सारे पास वाले अफसर हैं जिनको पास मिले हैं, वो सारे वो देखो हैं। हाँ? तो तुम ये बताओ इनमें कुछ तुम्हारी जान पहचान वाला भी है? तुमने वीजा लगवाना है क्या किसी से? बे नामा नीम ना होता, मैं कह रही हूँ तुम्हें जानने वाला ही बैठा है यहाँ। बहुत सारे हैं, वो देखे वो सामने वो जो अफसर बैठा है ना, हाँ वो उससे मैं रोजाना गोश्त खरीदता हूँ। ये बातों की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी हुई है ना। सारे रिश्तेदार लगते हैं तुम्हारे मुतालिक जाने वाले। बे इधर कौन बैठे हैं बे? इधर सारे फनकार बैठे हुए हैं मिस मुसीबती। बे 2-4 मुझे भी ले दो। ओह ये यहाँ पर अवार्ड लेने आए हैं ये कुमंडी नहीं लगी हुई। अच्छा मिस मुसीबती, अच्छा बे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें टीवी का कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है? मिस मुसीबती, टीवी का हर प्रोग्राम का शुरू और आखिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी चाहता है बार बार देखूं, रज के देख लूं। टीवी प्रोग्राम शुरू और आखिर में क्या होता है? शुरू और आखिर में मिस मुसीबती बता दूं? बताओ ना। अनाउंसर। तेरा बिना जावे बे, कौन सी अनाउंसर तुम्हें अच्छी लगती है? क्या पूछा तुमने? कौन सी अनाउंसर तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छी लगती है अनाउंसर सलमा बेग। सलमा बेग? हाँ। ये नामा नहीं, वो अनाउंसर नहीं है। हाँ मुझे पता है वो अनाउंसर नहीं है, मगर वो हमारी तरह एक पुतली तो है ना,
उसका सिर्फ मुंह हिलता है, पीछे आवाज अबैदुल्लाह बेग की होती है।